وہ آتا ہے کہ اچھا چلو یہ میں آگے فارورڈ کر دیتا ہوں، دیکھو یہ کہنا کہ اس کی نیت بلاسفیمی کرنے کی تھی، یہ اس کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے۔ پاکستان پینل کوڈ 295 جسے بلاسفیمی لا کے تحت بھی جانا جاتا ہے، یہ اوریجنلی 1860 کے اندر برٹش کالونیل رول کے اندر فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس ہوا تھا۔ اس کے بعد 1947 کے بعد پاکستان کی آزادی کے بعد جنرل ضیاء الحق کے دور میں اس میں کچھ امینڈمنٹس ہوئیں اور 295 اے بی اور سی کا اضافہ ہوا، مگر اوریجنلی اس لا کی جو لیجسلیٹو انٹینٹ تھی وہ 1860 کے اندر پرپوز ہوئی تھی۔ یہ بات اہم کیوں ہے؟ یہ بات اس لیے اہم ہے کیونکہ قانون میں ایک اہم چیز ہم سمجھتے ہیں جسے کہتے ہیں گیپ انالیسس۔ اگر آپ اسلامک جورسپروڈنس کی بات کریں تو امام ابن تیمیہ اور ریسنٹلی شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس کے اوپر کافی ڈیٹیل پہ کام کیا ہے، اور اگر ماڈرن جورسپروڈنس کی بات کریں تو ڈونلڈ بلیک اور مارک گلنٹن نے اس کے اوپر کام کیا ہے۔ گیپ انالیسس کیا کرتا ہے کہ اسلامک جورسپروڈنس ایکچوئل کیا کہہ رہی ہے کسی قانون کے حوالے سے، وہ پھر جب وہ ریاست کا قانون بنتا ہے تو وہ کیا قانون بنا ہے، اور پھر جب اس کا اطلاق ہو رہا ہے تو وہ ایکچوئل میں اس کا اطلاق کیا ہو رہا ہے۔ تو گیپ انالیسس یہ کرتا ہے کہ اسلامک جورسپروڈنس جو اوریجنل جو ڈیمانڈ کر رہی ہے وہ اور اس میں اطلاق میں کتنا ڈفرینس ہے، اور اسی کو گیپ انالیسس کہتے ہیں۔ تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ بلاسفیمی کے قوانین اور اس کے اطلاق کے وجہ سے بہت حساسیت پائی جاتی ہے، مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ کچھ انٹرسٹ گروپ ایسے ہیں جو مذہبی انٹرسٹ گروپ بھی ہیں، کچھ سیکولر انٹرسٹ گروپ بھی ہیں، جو اس میں انتہائی غیر ذمہ داری اور غیر حساسیت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور مذہبی انٹرسٹ گروپ تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ وہ انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے میں وہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر توہین کا الزام لگا ہے تو بس اگر اس کو سزا نہیں ملے گی تب تک بات آگے نہیں بڑھے گی، یعنی کہ پریزمپشن آف انوسنس کا جو پورا ماڈل ہے وہ اس کو زیر بحث لے کے نہیں آتے۔ یہی معاملہ جو ہے وہ سیکولر جو ناصر ہیں وہ کرتے تھے۔ جب آپ کو یاد ہوگا می ٹو کی موومنٹ آئی تھی کہ اگر کسی نے الزام لگایا ہے زیادتی کا یا ہیراسمنٹ کا تو بس اس کی کریڈیبلٹی ہے یا نہیں ہے، بس اس کے اوپر منوان اعتماد کرو، یقین کرو اور آگے بڑھو۔ اور یہی رویہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو مذہبی طبقہ ہے اس کی طرف سے توہین مذہب کے حوالے سے کی جو چیزیں ہیں اس میں سامنے آتی ہیں کہ اگر کسی کے اوپر الزام لگائے تو بس جب تک سزا نہیں ملے گی تب تک بات آگے نہیں بڑھے گی۔ اسی وجہ سے کچھ گزاشتہ تک نہیں ہے۔ ڈاکٹر محمد مشتاق جو اسلامک شریعہ بورڈ کے ڈائریکٹر جنرل رہ چکے ہیں اسلامک یونیورسٹی کے، اور چیف جسٹس آف پاکستان کے سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں، ان کا ایک بہت ہی زبردست تحقیقی مقالہ ہے اس بلاسفیمی لا کے حوالے سے۔ اس کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں ہم انشاءاللہ دے دیں گے، اور آپ اس کا لازمی مطالعہ کیجیے۔ سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے مطابق پریزمپشن آف انوسنس یعنی کہ البراۃ الاصلیہ یہ سب سے ایک اہم فیکٹر ہے، یعنی کہ انوسنس انٹل پروون گلٹی کا جو کانسیپٹ ہے کہ جب تک الزام ثابت نہیں ہوتا بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ تب تک وہ الزام ہی رہے گا، اس کو جرم میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا اس میں اہم نقطہ یہ ہے کہ کوئی جرم جو پرائیویٹلی ڈومین کے اندر کیا گیا ہو وہ حدود کی پنشمنٹ میں نہیں آتا، اور جیسے ہم نے عرض کیا ڈاکٹر محمد مشتاق کے مقالے کو آپ اگر مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بلاسفیمی اٹ سیلف حدود نہیں، حدود کی سزاؤں میں نہیں آتا، بلکہ بلاسفیمی کی وجہ سے مسلمان اگر کوئی نعوذ باللہ توہین کرتا ہے تو وہ اس کی وجہ سے ارتداد کا مرتکب ہوتا ہے، اپوسٹیسی کا مرتکب ہوتا ہے، تو اس اپوسٹیسی کی وجہ سے اس کے اوپر حد لاگو ہوتی ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم کوئی توہین کرے گا تو اس کے اوپر حدود کا اطلاق نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اوپر تعزیری سزا لگے گی، جو بھی حکومت اس وقت کی ریاست کوئی بھی حکومت وہ کام کر لے، کیونکہ بلاسفیمی کرنے والا ارتداد کا جرم کا ارتکاب کرتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے اوپر حد نافذ ہوتی ہے۔ اور حدود کے لیے جو پیرامیٹرز ہیں وہ تو انتہائی اسٹرکٹ ہیں، یعنی کہ ہم نے پریزمپشن آف انوسنس کا ذکر کر لیا، اس کے علاوہ حدود کی کچھ سزائیں، حدود کے کچھ جرائم ایسے ہیں کہ جو اگر پرائیویٹلی کمٹ کیے جائیں تو ان کے اوپر اطلاق نہیں ہوتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی حدود اللہ پامال کر رہا ہے اور اس میں دو فیکٹرز نہیں ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی ایک فیکٹر نہیں ہے، تو وہ معاملہ اس شخص کے اور اس اللہ کے سپرد ہے، اس میں ریاست یا جو ریاستی مشینری ہے وہ انوالو نہیں ہوگی۔ اور وہ دو فیکٹرز کیا ہیں
कि अगर वो किसी को उस जुर्म की वजह से किसी को हार्म नहीं हो रहा, बॉडीली फिजिकल हार्म नहीं हो रहा या प्रॉपर्टी हार्म, या फिर वो पब्लिक डोमेन में अगर वो जुर्म नहीं हो रहा, तो फिर उस मामले के ऊपर कोई भी कानूनी चाराजोई नहीं होगी। इसी उसूल को अगर हम डिटेल से देखें तो 3 जराइम ऐसे हैं हुदूदुल्लाह के जो कि इस डोमेन में आते हैं। एक है शराब नोशी, दूसरा है ज़िना बिल रज़ा और तीसरा है इर्तिदाद, और यानी कि इर्तिदाद का मतलब ये है ब्लास्फेमी। तो अगर तो ये तीनों जराइम पब्लिक डोमेन में नहीं हो रहे हैं, तो चूंकि ये वो प्राइवेटली डोमेन के अंदर हुए हैं, तो उसकी प्रोसिक्यूशन या वो उसकी कानूनी चाराजोई नहीं होगी। हजरत उमर फारूक का बहुत मशहूर वाकया है कि उन्होंने एक शख्स के घर में दाखिल हुए, तो वो शराब पी रहा था। अब शराब जाहिर सी बात है मुसलमानों के लिए हुदूद की सजा में आती है। तो हजरत उमर फारूक ने उससे बात पुरस की, तो उस शख्स ने कहा कि मैंने तो एक अल्लाह का हुक्म तोड़ा है, आपने 3 तोड़े हैं। और पहला ये है कि आपने तजस्सुस किया, दूसरा ये है कि आप मेरी इजाज़त के बगैर जो हैं वो घर के अंदर दाखिल हुए हैं, और तीसरा आपने ये किया कि आपने मेरी प्राइवेसी इन्वेड की है। और तो इस बात के बाद हजरत उमर फारूक ने, खलीफा दोइम ने उससे मदद की, और उस बात के ऊपर कानूनी चाराजोई नहीं हुई है। ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो इस्लामिक फिका में ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं कि किसी की प्राइवेट डोमेन के अंदर हुकूमत को इख्तियार नहीं है कि वो सर्वेलेंस करे, हुकूमत को इख्तियार नहीं है या किसी को भी इख्तियार नहीं है कि वो उसका तजस्सुस करे और उसमें टोल लगाए कि वो उसका अमल क्या है, जब तक कि वो पब्लिक डोमेन का हिस्सा नहीं बन गए हैं। मगर अफसोस का मुकाम यह है कि पिछले साल मुबारक सानी केस के अंदर वो उसूल जो खलीफा दम हजरत उमर फारूक ने मुतय्यन किए थे, जिसके ऊपर इमाम गजाली ने जिस बात को इंडोर्स किया, उस उसूल की धज्जियां बिखेर दी गई हैं। फिर इसमें सबसे अहम पहलू जो है वो है क्रिमिनल इंटेंट का, यानी कि गिल्टी माइंड का, जुर्म की नीयत का। अमाल का दारोमदार नियतों पर है। हम बचपन से ये हदीस सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं। इसके ऊपर इमाम अबू हनीफा ने, इमाम शाफी ने बहुत डिटेल में लिखा है, बहुत डिटेल में इसमें उसूल जो है उन्होंने मुतय्यन कराए हैं। जब भी 295 पीपीसी 295 आइसोलेशन में आप नहीं पढ़ सकते, 295 शुड बी रीड इन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 14 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड। क्रिमिनल इंटेंट, उसी मेंस रिया जिसे आप कहते हैं मेंस रिया, यानी कि जो बेसिक फंडामेंटल है किसी भी कानूनी जुरिस्प्रूडेंस का, किसी भी कानूनी इकोसिस्टम का, वो जरूरी है। यही बात और यही सेम बात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने भी बात कही। वो आता है कि अच्छा चलो ये मैं आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ, देखो ये कहना कि उसकी नीयत ब्लास्फेमी करने की थी, ये इसके ऊपर सवालिया निशान खड़ा होता है। अब उसके ऊपर कुछ लोग कहते हैं कि ये तो जी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंस है, और उसको स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंस में डालने की कोशिश करते हैं। अब ठीक है, कुछ लायबिलिटीज हैं जैसे रेमेडियल लायबिलिटी, वाइकेरियस लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एक्सेट्रा। मगर मसला ये है कि हुदूद की सजाएं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में नहीं आती, बल्कि स्ट्रिक्ट एविडेंशरी लॉ के तहत आती हैं। स्ट्रिक्ट एविडेंशरी लॉ का मतलब यह है कि जो कानून शहादत के तहत, पाकिस्तान के जो कानून शहादत है, इसके अलावा जो इस्लामिक फिका में जो कानून शहादत है, उसके तहत बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जुर्म साबित करना होगा, और उसमें क्रिमिनल इंटेंट साबित करनी होगी। तब जाकर वो चीज एस्टेब्लिश होगी कि ये जुर्म जो है वो सरजद हुआ है। अफसोस का मामला ये है कि इसके ऊपर बहुत ही मुज़ाहिरा खेज किस्म के आर्गूमेंट दिए जाते हैं कि जी देखें जी, ट्रैफिक का कानून अगर आपने तोड़ा है तो उसमें भी तो आपसे नहीं पूछते ना कि आपने जो सिग्नल तोड़ा है उसमें आपकी नीयत थी सिग्नल तोड़ने की, नहीं थी, आप गलती से तोड़ सकते हैं या आप नेग्लिजेंस में तोड़ सकते हैं। और ये इंतहाई इंतहाई मुज़ाहिरा खेज किस्म की बात है, क्योंकि ट्रैफिक कानून की जो खिलाफ वर्जी है वो सिविल वायलेशन के अंदर आती है, उस पर फाइन लगता है, और अगर आप वो फाइन अदा नहीं करते तब जाकर उसके ऊपर क्रिमिनल इंटेंट लगती है, क्योंकि हुकूमत ने आपको एक फाइन दिया, हुकूमत ने आपको एक हुक्म दिया कि आपने किसी चीज की खिलाफ वर्जी की है और आप फिर वो नहीं कर रहे, तो फिर उसमें क्रिमिनल इंटेंट आती है कि आप जानबूझ के वो काम नहीं कर रहे। और जहां मामला हुदूद का आता है वहां तो और ज्यादा एहतियात करनी है। ये सारे उसूल जो हमने आपको बयान फरमाए, उसमें तो सबसे अहम चीज यही है कि इनको इनको स्ट्रिक्ट एविडेंशरी लॉ के तहत परखना चाहिए। और आखिरी जो सबसे अहम बात जो इस कानून के हवाले से है वो ये है कि रुजू और तौबा। इमाम अबू हनीफा ने, इमाम शाफी ने, अल्लामा यूसुफ अल करजावी ने इसके ऊपर बहुत तफसील से लिखा है कि रुजू और तौबा अगर किसी से इन तमाम चीजों के बाद भी, यानी कि जो हमने तमाम आपको प्रोसेस बताए,
उस तमाम प्रोसेस के बाद भी अगर ये साबित हो जाता है कि हाँ जी तौहीन का मुर्तकब हुआ है, तो भी रुजू और तौबा का दरवाज़ा खुला रहेगा, क्योंकि ये इर्तदाद है, क्योंकि इसमें एपोस्टेसी है। और फिर उसकी उसमें जो हद लगती है वो ज़ाहिर सी बात है, मर्द है तो वो सज़ाए मौत है, अगर औरत है तो जिला वतनी है। और ये वो एक ऐसा मौका है कि जहाँ पर हम देखते हैं कि जी मजहबी इंटरेस्ट ग्रुप के हवाले से मुनाफिकत पाई जाती है। यानी कि तारिक मसूद साहब के हवाले से अगर कोई मामला हो, हम ये मान रहे हैं कि उनसे तौहीन नहीं हुई, लेकिन हम वहां पर देखते हैं कि जी वहां पर तो तौबा और रुजू का जो प्रोविजन है वो इन्वोक किया जाता है। मगर ये जो लग्जरी है वो फिर बाकी केसेस में, और जो बाकी जिन लोगों पर इल्जाम लगे हैं, जो कि सिर्फ अभी तक इल्जामात हैं, उनमें जो है वो नहीं नहीं देखी जाती। और एक भौंडा इल्जाम के लगाया जाता है, देखिए जी ये तौहीन मजहब के ऊपर जिन लोगों का इल्जाम लगाया है, इनके तो वकला जो है वो एजेंडा लिबरल लोग हैं, इनके तो वकला ईमान मदारी साहिबा हैं, इनमें तो जो लोग हैं वो दीन बेदार लोग हैं। तो उसका रीजन ये है कि जो हकीकत के ऊपर मबनी है, आप जाके इसके ऊपर खुद सर्वे कर सकते हैं कि एक तो क्रिमिनल लिटिगेटर्स पाकिस्तान में जो एक्सपर्ट हैं वो तौहीन मजहब के कवानीन के हवाले से केसेस लेने से कतराते हैं। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इसमें हसासियत है, इसमें मॉब जस्टिस मेंटालिटी का इशू है कि कोई जितना होगा और वो उसको आके जो है मामला कर देगा। और माजी में ऐसा ऐसा हुआ भी है, बेशुमार बेचारे वकला आजाद जो हैं वो इसमें शहीद हुए हैं कि सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि जी वो किसी का केस देख रहे थे और उसको किसी ने आके जान से मार दिया। इस वजह से बेशुमार वकला आजाद इन केसेस को लेने से कतराते हैं। तो मजबूरन किसी के ऊपर अगर झूठा इल्जाम लगा है तो वो किसी वकील के पास तो जाएगा ना। यानी आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगे तो वो उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अपना मुकदमा भी ना लड़े, वो किसी वकील के पास भी ना जाए। तो जो अवेलेबल वकील होंगे वो उन्हीं के पास जाएगा। अगर मसला सारा यही है कि इस पूरे पूरे रियल्म के अंदर, इस पूरे फैब्रिक के अंदर इतनी पेचीदगियां पैदा कर दी गई हैं कि जो असल असास थी इस कानून की वो बहुत पीछे रह गई है। और हर एक का अपने अपने इंटरेस्ट के ऊपर हर एक का अपना अपना इंटरेस्ट मौजूद है। यानी कि जब तक सजा ना हो जाए, भले वो मासूम था या वो मुजरिम था या नहीं था, जब तक सजा ना हो जाए तब तक जो है वो सुकून नहीं मिलेगा। ये रवैया इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है, इंतहाई गैर हसास है, इंतहाई गैर इस्लामी है। और आखिर में अर्ज यही है कि जो अभी ब्लास्फेमी गैंग के हवाले से जो केसेस का मामला है, उसमें स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट मौजूद है, उसमें नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट मौजूद है, उसमें दीगर फॉरेंसिक और फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स मौजूद हैं। वो तमाम की तमाम जो है वो झूठ बोल रही हैं, वो तमाम की तमाम जो है वो नाकारा हैं। मगर कोई एक ग्रोह है, कोई एक फर्द है, वो जो है उसको सारा इल्म है और वो पारसाई की हदें भी क्रॉस कर रहा है, उसका कोई अपना वेस्टेड इंटरेस्ट भी नहीं है, बस वो सच बोल रहा है। और बाकी ये तमाम मशीनरी जो है ये सब झूठ बोल रही हैं, अदालतें सब सब बेकार हैं। अगर इस किस्म का रवैया आप रखेंगे तो यकीन जानिए जो पाकिस्तान में अनारकी लोग फैलाते हैं और जो अपने कानून खुद हाथ में लेते हैं, आप उनको तकवीत बख्श रहे हैं। नुमानी खान ने एक बात कही थी कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा ये है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसूलों के मुताबिक मोहब्बत की जाए। आप खुद से अपना दीन इजात मत कीजिए, खुद से खुदा ना बनिए। और अल्लाह ताला हमें इल्म और अमल की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया।